Our role in sustainable development. Increasing population and development has led to the increase in consumption of the natural resources. The more the population, the more food, energy, and water we need. When we grow more crops, the soil's nutrients are consumed and slowly the soil becomes unusable. Similarly, we continue to use fossil fuels such as coal, oil, and natural gas. Very soon, we will run out of these natural resources. We use so many resources from nature, but what do we give back to nature. nature? Factories give out smoke that pollutes the air. Garbage collected from homes is dumped into landfills. Untreated garbage can lead to disease and unhealthy environment. Sewage from the cities is dumped into the seas and lakes, making it unsafe for marine life. हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या रोल है? आज पॉपुलेशन बड़ी तेजी से बढ़ रही है, इससे नेचुरल रिसोर्सेज की कंजम्पशन भी बढ़ रही है। ज़्यादा पॉपुलेशन के कारण इस जो बड़ी हुई पॉपुलेशन इसको भी फूड भी चाहिए, एनर्जी भी चाहिए और वाटर भी चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप्स भी प्रोड्यूस करनी पड़ेगी। इससे क्या हो रहा है कि सॉइल के न्यूट्रिएंट्स भी तेजी से कंज्यूम हो रहे हैं, और सॉइल है धीरे धीरे वो अनयूजेबल हो रही है। हम लगातार फॉसिल फ्यूल्स को, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, कोल हो गया, इन सबको यूज करते जा रहे हैं, और वो दिन दूर नहीं कि जब ये नेचुरल रिसोर्सेज भी धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। हम इन सभी नेचुरल रिसोर्सेज को यूज तो कर रहे हैं, पर हम नेचर को वापस क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं। फैक्ट्रीज जो हैं वो धुआं छोड़ रही हैं और एयर को पल्यूट कर रही हैं। घर से घरों से जो इकट्ठा होता है गार्बेज, वो लैंडफिल्स में डंप कर दिया जाता है, और जो अनट्रीटेड गार्बेज है उसके कारण कई प्रकार की डिसीजेस फैल रही हैं, और इन्वायरमेंट भी अनहेल्दी हो रहा है। जो सिटीज से सीवेज निकल रहा है वो रिवर से, सीज में, लेक्स में हम डंप कर रहे हैं। इससे जो मरीन लाइफ, जो समुद्र में पानी में रहने वाले जीव जंतु हैं, उनकी जिंदगी को, लाइफ को खतरा पैदा हो गया है। This shows that though we are using the natural resources, we are doing nothing to return or give back to nature. Natural resources are limited and with time they will get over, and if we do not do anything about it, our future generations will not be able to survive. Our role towards sustainable development. United Nations has formed 17 sustainable development goals which aim to end poverty, protect the environment, reduce economic inequality, and ensure peace and justice for all. SDGs are designed to bring the world to several life changing zeros, including zero poverty, hunger, AIDS, and discrimination against women and girls. Countries are now making policies and regulations to provide a secure, affordable, and sustainable economy. इस तरह शो हो गया कि हम जो नेचुरल रिसोर्सेज यूज तो कर रहे हैं, पर हम नेचर को कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहे। नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड हैं, और वो समय दूर नहीं कि अगर हम ने इनको जुडिशियसली यूज ना किया या इनको बचाने के लिए कुछ प्रयत्न ना किए, तो आने वाली जनरेशन्स को बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगी। अगला पॉइंट है कि हमारा रोल सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या है। यूनाइटेड नेशंस ने 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बनाए हैं, जिनका एम पावर्टी को ख़त्म करना, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को कम करना, और पीस एंड जस्टिस फॉर ऑल है। ये जो एसडीजीज हैं इनको इस तरह बनाया गया है कि ताकि कई लाइफ चेंजिंग जीरोज आए, जैसे जीरो पावर्टी, जीरो हंगर, नो एड्स, और डिस्क्रिमिनेशन जो है वुमेन एंड गर्ल्स के अगेंस्ट ना हो। कंट्रीज जो अब हैं वो अपनी पॉलिसीज, रूल्स एंड रेगुलेशंस ऐसे बना रहे हैं कि उनकी जो इकोनॉमी है वो सस्टेनेबली डेवलप करे। Sustainable development can actually happen only when each one of us works towards it. We have to become responsible citizens who can protect the environment through our own efforts. Here are some basic ways in which people can help towards sustainable development goals or the ways by which we and our future generation can enjoy the good environment. Number 1, quality education.
Education is the most important factor for sustainable development. Education helps us become aware of our role as a responsible citizen. Sustainable development is a societal rather than an environmental challenge. सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हम तभी प्राप्त कर सकते हैं, अटेन कर सकते हैं, जब हम में से हर कोई सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ काम करे। हमें रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स की तरह बिहेव करना होगा। इससे ही हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हासिल कर सकते हैं और अपने इन्वायरमेंट को बचा सकते हैं। यहाँ पर हम कुछ रास्ते बता रहे हैं जिससे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को हम हासिल कर सकते हैं और जो आने वाली जनरेशन्स हैं वो भी गुड इन्वायरमेंट को इंजॉय कर सकेंगी। सबसे पहला है क्वालिटी एजुकेशन। एजुकेशन जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है। एजुकेशन से हमें ये पता लगता है कि हम एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, एजुकेशन से हमें ये पता चलता है कि हमें एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बिहेव करना चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट केवल एक सोसाइटल चेंज नहीं है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक सोसाइटल चेंज है, ये एक एनवायरमेंटल चेंज नहीं है। Considerable improvements are required in education and healthcare, resulting, among others, in higher income and better environmental decisions. Education brings changes in our knowledge, skills, values, and attitudes and shows us the ways how to live together and with nature in peace and harmony. Number two, clean water and sanitation. We must make efforts to make India free of open defecation by building toilets and creating awareness towards sanitation. Industrial pollution is polluting our water resources, which is near future will cause shortage of clean drinking and usable water. We must promote awareness to keep water sources clean. एजुकेशन और हेल्थ केयर के एरियाज में बहुत सी इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत है जिससे कि सभी लोगों की इनकम बढ़ेगी और इन्वायरमेंट भी ठीक होगा। एजुकेशन से हमारी नॉलेज, स्किल्स और वैल्यूज़, एटीट्यूड्स में चेंज आती है और जो एजुकेशन है हमें ये सिखाती है कि हमें कैसे मिलजुल के रहना चाहिए और नेचर के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए। ठीक है, अगर हम इंडिया की बात करें तो हेल्थ केयर के फील्ड में जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने आयुष्मान भारत स्कीम लॉन्च की हुई है। नेक्स्ट पॉइंट है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। हमें इंडिया को ओपन डिफेकेशन से मुक्त करने के लिए घर घर में टॉयलेट्स बनाने होंगे और हमें सैनिटेशन, साफ सफाई के प्रति लोगों को अवेयर करना होगा। इंडस्ट्रियल पोल्यूशन जो है वो वाटर रिसोर्सेज को पोल्यूट कर रहा है और इससे आने वाले समय में पीने वाले पानी और साफ पानी की कमी हो जाएगी। हमें अपने जो दुनिया भर में पाए जाने वाटर रिसोर्सेज हैं उनके बारे को क्लीन रखने के लिए अवेयरनेस क्रिएट करने की ज़रूरत है। Next, affordable and clean energy using solar power does not cause pollution as it does not require burning of non renewable fuels such as coal. We are making efforts to increase the solar power generation so that our electricity needs are met and at the same time we do not pollute the environment or use up natural resources. Use of biogas is also as eco-friendly alternative to natural gas. We should reduce the use of fossil fuels. Fourth, creating sustainable cities. Number one, save energy by switching off lights and fans when not in use. Number two, use natural light as much as possible. Third, use energy efficient lights, LED bulbs and appliances. हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हासिल करने के लिए अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी को यूज़ करना चाहिए। हमें सोलर पावर को यूज़ करना चाहिए, इससे कोई भी पोल्यूशन भी नहीं होता और हमें कोल वगैरह जो नॉन रिन्यूएबल फ्यूल्स हैं उनको बर्न करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। सोलर पावर जनरेशन से है हम ना केवल अपनी इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत जो नीड्स हैं उसको पूरा कर सकते हैं, इससे हम इन्वायरमेंट को भी पोल्यूट होने से बचा सकते हैं और इससे जो नेचुरल रिसोर्सेज भी हैं वो भी एक्सटिंक्ट होने से बच जाते हैं।
हमें फॉसिल फ्यूल्स का यूज कम से कम करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, हमें सस्टेनेबल सिटीज को क्रिएट करना चाहिए, इससे सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगी। हमें इसके लिए क्या करना होगा, हमें जो लाइट्स, जब हमें जरूरत नहीं है उस समय हम लाइट्स और फैंस को बंद कर दें, और जहां तक पॉसिबल हो सके हमें नेचुरल लाइट को यूज करना चाहिए। हमें जो पुराने समय में पाए जाने वाले बल्ब से उनकी कंपैरिजन में हमें जो एलईडी बल्ब जो लेटेस्ट हैं उनको यूज करना चाहिए, क्योंकि वो एनर्जी एफिशिएंट होते हैं। Fifth, reduce inequalities. To reduce inequalities, we can number one, be helpful to one another. Number two, be friendly with everyone. Third, include everyone while working or playing. Fourth, help others by including everyone, whether they are small or big, girl or boy, belong to any class or caste. Sixth, protect life on land. Cutting of trees is leading to soil erosion and making land dry and unusable for cultivation. Planting more trees to replace the ones that we have cut is an important step towards sustainable development. Green grassy patches and trees to be grown between concrete buildings. अगर हम सोशल डेवलपमेंट को अटेन करना चाहते हैं तो हमें इन इनक्वालिटीज़ को कम करना होगा। हमें एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, एक दूसरे से फ्रेंडली होना चाहिए। अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं या खेल रहे हैं तो हमें दूसरों को भी साथ में शामिल करना चाहिए। और हमें कोई भी हो, चाहे वो बिग हो, स्मॉल हो, गर्ल हो या बॉय हो, किसी भी कास्ट या क्लास का हो, हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि हमें प्रोटेक्ट लाइफ ऑन लैंड। हमें जो ट्रीज है उनको उनको काटने कम काटना चाहिए, क्योंकि जो हम ट्रीज काट रहे हैं, डिफोरेस्टेशन कर रहे हैं, इससे सॉइल इरोजन हो रही है और लैंड जो है वो कल्टीवेशन के लिए अनयूजेबल हो रही है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज लगाने चाहिए, इससे ही हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हासिल कर सकते हैं। हम जो कंक्रीट की बनी बिल्डिंग्स हैं उनके बीच में जो भी स्पेस है वहाँ पर हमें ग्रीन ग्रासी पैचेस लगाने चाहिए या ट्रीज को प्लांट करना चाहिए। Seventh, responsible consumers and producers. We can become responsible about our own environment by number one, reuse, रीयूजिंग reusing waste paper, glass, plastic, water, etc. Number two, taking cloth bags to market, carrying fruits and vegetables. Three, donate things we do not use, such as clothes, books, furniture, food, etc. Fourth, buy and eat seasonal fruits and vegetables from local growers. Fifth, repair leaking taps and pipes to avoid wasting water. Sixth, sort and treat garbage before disposing. Seventh, use of technologies which are environment friendly and based on efficient use of resources. अगर हम सोशल सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अटेन करना चाहते हैं तो हमें एज रिस्पॉन्सिबल कंज्यूमर्स और प्रोड्यूसर्स बिहेव करना चाहिए। हमें जो वेस्ट पेपर या वेस्ट ग्लास, वेस्ट प्लास्टिक और वेस्ट वाटर है उसको रीयूज करना चाहिए। हमें जब मार्केट में जा रहे हैं तो वहाँ पर जाकर प्लास्टिक बैग्स की डिमांड नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें घर से ही क्लॉथ बैग्स को लेकर जाना चाहिए और मार्केट से परचेजिंग करना चाहिए। हमारे पास जो भी क्लोथ्स, बुक्स, फर्नीचर और फूड जो हमें नहीं चाहिए, जो हमारे लिए वेस्ट है, जहाँ हम और नया ले आए हैं, तो हमें उस पुराने क्लोथ्स, बुक्स वगैरह को गरीबों को डोनेट कर देना चाहिए। हमें खाने पीने के लिए लोकल ग्रोवर से सीजनल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ही परचेज करने चाहिए। अगर पानी वेस्ट हो रहा है, कोई पाइप लीक कर रही है या टैप लीक कर रही है, तो हमें उसको रिपेयर करना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो आने वाले समय में पीने वाले पानी की बहुत ज़्यादा समस्या होने जा रही है। हमें जो गार्बेज है उसको प्रॉपरली ट्रीट करके ही डिस्पोज ऑफ करना चाहिए। हमें ऐसी टेक्नोलॉजीज को इन्वेंट करना चाहिए और यूज़ करना चाहिए जो कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो और जिससे कि रिसोर्सेज का एफिशिएंट यूज़ हो। 8. Protect life below water. Tons of plastic is found in the seas, which is killing marine life. Protecting marine life, saving our oceans from pollution is necessary to preserve the marine life. We should use more environment friendly material or biodegradable material. 9. Encourage public and private investments that align with the SDGs.
10th, all stakeholders must work together to conserve, restore, and rationally use natural resources. 11th, drastically changing development policies, incentives, and actions. Government should impose taxes or fines on release of the waste directly into the water resources. नेक्स्ट पॉइंट है कि हमें पानी के नीचे जो रह रहे हैं जीव जंतु उनको भी प्रोटेक्ट करना चाहिए, यानी कि हमें मरीन लाइफ को भी प्रोटेक्ट करना चाहिए। आजकल क्या हो रहा है, हम प्लास्टिक्स को यूज कर रहे हैं, वो अल्टीमेटली रिवर्स में और सीज समुंदर में जा रहे हैं, जिससे कि जो मरीन लाइफ है उनकी लाइफ को बहुत ही खतरा पैदा हो गया है। हमें उनको बचाने के लिए प्लास्टिक का कम से कम यूज करना चाहिए। हमें वही मटेरियल यूज करना चाहिए जो बायोडिग्रेडेबल हो, यानी कि जो समय के साथ खत्म हो जाए मटेरियल। ऐसे बैग्स को प्लास्टिक की अपेक्षा में यूज करना चाहिए। और हमें जो पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को इनकरेज करना चाहिए, जो कि हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने में हेल्प कर सकें। उन क्षेत्रों में हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और हमें ऑल स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर काम करना होगा, ताकि हम नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकें, रिस्टोर कर सकें और उनका रैशनल यूज कर सकें। सभी स्टेट्स लेवल पर गवर्नमेंट्स या नेशनल लेवल पर गवर्नमेंट्स को अपनी डेवलपमेंट पॉलिसीज, इंसेंटिव्स और एक्शंस को ड्रास्टिकली चेंज करना होगा। अगर कोई इंडस्ट्रियल यूनिट अपने वेस्ट को सीधा वाटर रिसोर्सेज में फेंक रहा है, बल्कि अपनी वेस्ट को वहां डंप कर रहा है रिवर्स में या और वाटर सोर्सेज में, इससे जो सारी रिवर्स है वो उनका पानी खराब हो रहा है। तो इस सिचुएशन में जो गवर्नमेंट को टैक्सेस लगाने चाहिए या हैवी फाइन्स लगाने चाहिए उन इंडस्ट्रियल पोल्यूटिंग यूनिट्स पर। In the absence of any direct consequences, the individual will tend to do what is best for the person and not what is best for the common good of the public. Cooperatives and NGOs also play a great role in the upliftment of the socio-economic conditions of the rural poor and generating awareness among people regarding environmental issues. कई लोग ये जरूर कहेंगे कि हैवी फाइन्स नहीं लगाने चाहिए या टैक्सेस नहीं लगाने चाहिए, पर आमतौर पर जो लोगों की जो नॉर्मल टेंडेंसी होती है वो वही काम करते हैं जो उनके लिए अपने के लिए अच्छा होता है। वो जनरल पब्लिक के बारे में नहीं सोचते। अगर हम बिजनेसमैन या इंडस्ट्रियल यूनिट की बात करें तो उनके लिए पोल्यूशन को रोकने के लिए जो भी उनको इक्विपमेंट लगाने पड़ेंगे वो महंगे होंगे, वो कभी नहीं लगाएंगे। इसलिए क्या है कि उनके लिए हमें कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, स्ट्रिक्ट एक्शन गवर्नमेंट को लेना ही पड़ेगा। जो कोऑपरेटिव्स हैं और जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इस क्षेत्र में, यानी कि जो हम जिस डेवलपमेंट को हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं उसमें ये कोऑपरेटिव्स और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस एक अच्छा रोल अदा कर सकती हैं। वे लोगों में अवेयरनेस पैदा कर सकती हैं कि एनवायरनमेंट को कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं और इनको कैसे टैकल किया जाना चाहिए। If you like our video, please share and subscribe our channel. Thank you. Thank you. Thanks for watching. If you like our course, please spare some time to give a star rating to our course.